Hello everyone. Today we are starting our online classes for biology section. So now today we are going to discuss about our fundamental or basic chapter, that is cell. As you all known about cell, but in this chapter we should discuss about what is cell theory, what is the definition of cell, who discovered cell, who gave the discovery of cell theory, all the important aspects of these chapter. So let's start about cell. What is cell? Cell is the basic structure, functional and genetic element of all living organisms. जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि सेल क्या है. सेल बेसिक, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है. सो इट इज़ द बेसिक, structural, fundamental and genetic unit of all living organism. So why we are saying here cell is the basic, structural, fundamental and genetic unit of all living organism? Because जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हों, चाहे वो मल्टी सेलुलर हों, उन सबकी बॉडी क्या कंपोज करती है? सेल कंपोज करती है. यही सेल आगे जा कर के उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उनकी बॉडी को जेनेटिक बेस देता है और उनके जीवन यापन का आधार या बेस बनता है. नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेल. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग सेल, वी शुड नो व्हाट इज़ द टू बेसिक थिंग्स अबाउट सेल. दैट इज़ in which category we are studying cell and in which category we are considering the cell. So there are two important aspects of cell. That is, first one is cytology. So what is cytology? The study of cell. The study of cell is known as साइटोलॉजी. साइटोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल बायोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम साइटोलॉजी. In both the sections we are considering cell, but when we are talking about cell biology, it is more and more broader concept than cytology, because when we are saying cell biology, we are considering in this the study of cell structure, function, genetics, physiology, biochemistry, etc. So when we are talking about cell biology, in this session we are discussing about cell structure, cell function, genetics, biochemistry and physiology of cell. So this is the difference between cytology and cell biology. Cytology is the old concept, but in the new concept we are using cell biology instead of cytology. So
Now we are come to the next topic, that is cell. What is cell? As I already told you, it is basic, structural, fundamental and genetic unit of all living organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका बेसिक क्या होता है? सेल होता है, क्योंकि उसकी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल से बनी होती है. सो सेल इज द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला. सेल सेल word comes from Latin word that is cella, means hollow cavity, hollow cavity or hollow space. So cell word comes from the Latin word cella, means hollow cavity or hollow space. Now we are considering what is hollow cavity or what is hollow space comes from. This word cell first time given by Robert Hooke. This was discovered by Robert Hooke. So we will discuss our next topic, discovery of cell. हम सब लोग जानते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी? साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था. उन्होंने कॉर्क सेल में, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था इन थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क उन्होंने देखा था. बट दीज सेल्स वर नॉट लिविंग सेल्स, दीज वर डेड सेल्स. These were dead cells. Again I am repeating, Robert Hooke discovered dead cells in the form of thin slice of cork. But then who discovered living cell? So after Robert Hooke, the scientist A.V. Leeuwenhoek, that is Antony von Leeuwenhoek, discovered living cells in many organisms. Example, yeast, bacteria, एक्सेट्रा. तो रॉबर्ट हुक ने जब फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया तो उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था. बट एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया. और किसने किया? ईस्ट, बैक्टीरिया एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स. नाउ what is the difference between dead cell and living cell? There are very minute difference between dead cell and living cell. Dead cell में सारे के सारे जो रॉबर्ट हुक ने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में से डेड सेल जो उन्होंने निकाला था उसमें सेल के पूरे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे.
वहाँ पे उनको सिर्फ क्या मिला था, सेल का एक हम कह सकते हैं कि उनको सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन ही मिला था, जो कि अंदर से क्या था, हॉलो था। उसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं थे। बट जब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर किया तो वहाँ पे उनको क्या मिला, सेल के सारे ऑर्गेनेल्स भी मिले सेल के साथ में। ठीक है, अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने अपनी जो उन्होंने सेल के ऊपर जो उन्होंने अपना डिस्कवरी किया था उसको उन्होंने एक बुक में पब्लिश किया था, एंड द बुक नेम वाज माइक्रोग्राफिया। तो उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया था या है माइक्रोग्राफिया है, जिसमें कि रॉबर्ट हुक के सारे जो उन्होंने सेल के ऊपर जितनी भी चीज़ें देखी थी वो सारी इस बुक में रिकॉर्ड या पब्लिश्ड की गई। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेल थ्योरी। ये सारी चीज़ें जो थी ये थी सेल के बारे में कि फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया और लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, डेड सेल रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया। अब हम देखते हैं कि ये व्हाट इज़ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में अभी तक हमको सिर्फ इतना पता है कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एम.जे. श्लेडेन एंड टी. श्वान। So let's discuss about cell theory. Cell theory was given by M.J. Schleiden and T. Schwann। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। बट बहुत सारे लोग हम में से नहीं जानते हैं, एवरीबडी नॉट नोन अबाउट द साइंटिस्ट ड्यूट्रोचेट। ड्यूट्रोचेट भी थे जिन्होंने कि सेल थ्योरी के ऊपर कुछ अपना काम किया था। इन्होंने मिमोसा प्लांट, ड्यूट्रोचेट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक एम.जे. श्लेडेन एंड श्वान के पहले ड्यूट्रोचेट जो थे इन्होंने सेल थ्योरी को देने की कोशिश की थी, बट ही वाज नॉट सक्सेसफुल। तो इन्होंने मिमोसा प्लांट को इन्होंने नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया था। नाइट्रिक एसिड बॉयल किया था और सेल उसमें से निकाला था। तो इन्होंने मिमोसा प्लांट को नाइट्रिक एसिड में बॉयल किया था और फिर उसके बाद सेल को उसमें से इन्होंने निकाला था, बट इन्होंने सेल थ्योरी नहीं दी। ड्यूट्रोचेट के बाद एम.जे. श्लेडेन और टी. श्वान आए जिन्होंने कि सेल थ्योरी को दिया, जिनकी वजह से सेल थ्योरी हमको पता चली। सेल थ्योरी की दो मेन बातें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमेशा हमको याद रखनी है। दैट इज़, फर्स्ट पॉइंट इज़ all the living organism composed of cell जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब लोग क्या कंपोज करते हैं, सेल कंपोज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके मिल के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। द सेकेंड पॉइंट, एवरी सेल arises from its
pre-existing cell. इस पॉइंट का मतलब है जितने भी सेल्स हैं वो सारे किससे अराइज हुए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. दैट मीन्स व्हाट? न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. दैट इज जितने भी नए सेल बनेंगे वो सबके सब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो थे उन्हीं से बनेंगे. बट दिस पॉइंट वॉज नॉट गिवन बाय एम.जे. श्लेडन एंड टी. श्वान. दिस पॉइंट वॉज गिवन बाय सर रुडोल्फ वर्को. So every cell arises from its pre-existing cell. This point was given by Sir Rudolf Virchow. इसको हम ओमनिस सेलुला ई सेलुला के कॉन्सेप्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं. दैट इज कि ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो एम.जे. श्लेडन एंड टी. श्वान ने कहा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स और सर रुडोल्फ वर्को ने कहा एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल. दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला. न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस. द थर्ड पॉइंट इज सेल्स आर स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड जेनेटिक यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे कि हमको पता है कि हमारे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेस होता है वो सेल ही होता है. उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, इवन जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक यूनिट जो होता है वो भी सेल ही होता है. थर्ड पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है. एंड द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट all cells are similar in chemical composition and metabolism. क्योंकि जितने भी सेल्स हैं, सेकेंड पॉइंट में अभी हमने देखा कि एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल. दैट इज़ जितने भी न्यू सेल हैं हमारे वो हमारे पहले वाले सेल से ही बन रहे हैं, इसलिए उनका केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिज्म सेम रहेगा. Now the last topic is totipotency. What is totipotency? This term is also related from cell theory. The first point is all the new cells of an organism develop from the pre-existing cell and hence each cell has the same genetic information. क्योंकि सेल में ही न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस ही वो है जो कि सारे के सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है. जितने भी हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं लाइक डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सारे न्यूक्लियस ही कंटेन करता है और वन बाय वन ये ट्रांसफ़र होता रहता है. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल. दिस टर्म इज़ नोन एज टोटिपोटेंसी. तो जैसे ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारा ट्रांसफ़र होता है एक सेल से दूसरे सेल में, ये एक न्यू इंडिविजुअल को बनाने की कैपेसिटी रखता है. दैट इज़ वन सेल इज़ कैपेबल टू गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल एंड दिस टर्म इज़ नोन एज टोटिपोटेंसी. सो these all are about cell and cell theory. In the later classes we will discuss about cell organelles, some facts about cell and other things. These are some facts regarding to cells. The smallest cell is PPLO, that is mycoplasma, pleuropneumonia like organism. Second point is the largest cell is ostrich egg. The third point, the longest cell is neuron cell or nerve cell. It is also
called as nerve cell. The largest human cell is female ovum, that is female egg. The smallest cell is human RBC, red blood corpuscles. Cell theory given by Schleiden and Schwann. Nucleus discovered by Robert Brown. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट दैट सेल्स वाज डेड सेल्स. Living cell discovered by Antony von Leeuwenhoek, and the last point is building block of body or any organism is cell. So these are some facts regarding to cells, and in the next topic, next lecture, we will discuss about unicellular organism, multicellular organism, prokaryotic cell, eukaryotic cell, and cell organelles. So thank you.